نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک عظیم پھر سے موقع دیا ہے جمعے کی اپنا جمعے والے دن کا نماز ادا کریں. تو یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، مرتبہ ہے، معیار ہے زندگی کا. جس طرح آپ لوگ اس کو پہچانتے ہیں، جس طرح آپ مانتے ہیں، دیکھتے ہیں اس معیار کو. پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہمارے دو فلیگز کے لگے ہوئے ہیں، ایک ارض فلسطین جو ہماری شان، جان، آن، مال ہے، ایمان ہے، اور دوسرا جو ہے ہمارا بولو پاکستان. جس ملک پہ رہتے ہیں اس کی شان و شان ہم بولتے ہیں، جس مطلب کہ انبیاء کے گھر سے محبت اور اظہار کرتے ہیں اور اس کا ایک جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ 14 اگست جب آتی ہے، جیسے کہ ابھی آ رہی ہے، تو اس میں ہم لوگ اپنی آزادی کے فنکشنز اور دیگر معیار ٹھس ٹھس چل رہا ہوتا ہے، مگر ہم جو ہیں ان شہداء کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ملک پاکستان ہم سب کو بولو دیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ملک پاکستان ہمیں بنا کر دیا ہے. یہ ہمیں اصل مقصد سے جو ہے محروم کر دیتے اور ہم جو ہیں چھوٹی موٹی چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں. اور آج کے جو کرنٹلی حالات چل رہے ہیں فلسطین کے، بیت المقدس کے، مسجد اقصی کے، اس میں بھی اگر ہم نظر ثانی کریں تو کس طرح مطلب معیار بن سکتا ہے اور کس طرح ہم لوگ ان مجاہدوں کے لیے، ان مظلومین کے لیے آواز بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اپنے صحابہ کے لیے کام آتے تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہا کرتے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی رہا کرتے تھے، شانہ بشانہ کھڑے رہا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو، امت کو، آگے آنے والوں کو پتہ لگ سکے. امت کو، آنے والی لوگوں کو، جو امت ہے نا، ان کو کیا لگ سکے، پتہ لگ سکے کہ بھائی ہر محکمے میں، ہر معیار میں، ہر جگہ میں، ہر ملک میں، ہر زندگی میں، ہر وقت میں ٹائم کا ڈیپینڈ ہو جانا اور دیگر اس میں معیار پہ ایک ہی کھڑا ہونا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے، اس پہ کوئی شک بولو نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے بانی وزیر جو تھے، وزیر اعظم کے لئے، پرائم منسٹر کے لئے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، آج تو نام بھی صحیح سے کم بخت نہیں لے رہے ہوتے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا نام بھی صحیح سے بولو نہیں لے رہے ہوتے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شاعر تھے، علماء ان کے شعروں کو نقل کیا کرتے تھے. کتنا بڑا معیار ہے. دوسرے نمبر پہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا نام بھی تمیز سے، جو عام طبقہ ہے باہر کا، علماء کا نہیں، جو عام طبقہ ہے، وہ بڑی بے غیرتی سے، بڑی اس سے کیا کرتے تھے، غلط نام لیا کرتے تھے. مطلب کہ نام، مطلب کہ کبھی الٹا پلٹا بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں. یہ جہالت ہے. کیا ہے بولو؟ جہالت ہے. سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو بھائی اس چیز کو ہم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہم پر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلمانوں پر، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، دنیا کا واجب ہے. یہ بہت بڑا معیار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لوگوں کو بتاتے پھر رہے علم کو مطلب سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، پھر بھی کیا اللہ رب العالمین سے علم سیکھا اور دنیا کو پہنچا دیا. اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
किस तरह 1400 साल बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात मतलब सुनता है बस जी हुजूर, बस यही चल रहा होता है, जी हुजूर, इसके अलावा कुछ नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत हाजिर है कि हुजूर ने फरमाया, भाई सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा मयार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, कितना बड़ा दिया। यही असल मकसद है यार। आज अपने लिबरल सेकुलरिज्म और जो आजकल के अब जाहिल भी उसमें मिल गया बेटा, ऐसे वैसे बस चला रहे होते हैं, फिश फिश और ऊपर ये वो मम्मी डैडी ये सब कुछ चल रहा होता है मार्केट में ना। तो इस चीज से हम लोगों ने पहले से ही बोलो गुरेज करना है। उस मयार हक पे चलना है जो हुजूर और अल्लाह के रास्ता है, जो अल्लाह उसका रसूल का रास्ता है, मैंने छोड़ो। समझते हो? पहली बात तो खूब समझ लेना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम हमें बतला दें, जो काम हमें सिखा दें, जो हमें पूरा मयार दिखला दें, तो आपने उस शरीयत को फॉलो करते हुए काम करना है, वरना आप बेकार हो, बेकार। आज बहुत से लोग ना मुझे बोलते हैं हम तबलीगी जमात के हैं, हम फला जमात के हैं, हम इस जमात के हैं, हम उसके हैं, तो काम जो है सारे बेड़े हर्क वाले उनके, खालियां ऐसी देंगे कि अल्लाह माफ करे। अबे तू नमाज पढ़ेंगे नहीं, कुरान पढ़ेंगे नहीं और अमल करेंगे नहीं, बस फेंकते रहेंगे फेंकते रहेंगे फेंकते रहेंगे। ये मतलब कि ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने बोला यार तू कैसा इंसान है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैं बहुत वो हूं कि मैं फला हूं, मैं अबे जब तेरा अमल पता होगा ना, जब तू नमाज पढ़ेगा, जब मैं मानूंगा तू असल अमल पे चल रहा है, वरना तो बेकार आदमी है। बहुत से लोग आके मुझसे बोल रहे थे कि भाई आपको ये नहीं आता तुझे, और एक शख्स और निकल के आया, इसको तो शादियों के अलावा कुछ आता ही नहीं, आओ कभी खुशबू लगा के बैठो, फिर हम बताएंगे क्या कुछ नहीं आता, फारिग हो जाओगे हमारे सामने। भाई हम बोलते हैं अपने आप को, हम मतलब कि कोई इल्म वगैरह नहीं है इतना हमारे पास, मगर बैठ गए ना किसी दिन तो फारिग करके बैठेंगे कि तुम ही फारिग देख रहोगे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फारिग नहीं हूँ। ऐसी ऐसी बात वाली बातें करते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो उलमा में भोगते हैं, कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान के ऊपर बरस जाते हैं। अबे देखो जब भी यूट्यूबर निकलेंगे ना सारे, या कुछ भी निकलेगा तो बदबख्त क्या बोलेंगे, बदबू ही मारेंगे मुंह से, कुछ नहीं, मुंह से बवासीर ही निकलेगा इनका और कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसे बदबख्त हैं ये। जिस मुल्क के अंदर रहकर, जिस मुल्क के अंदर खाना खाकर उल्टी सीधी बातें करते हो, ये तो समझ लो तुम अपने मुल्क को खोखला कर रहे हो, फिर बोलते हो कि भाई हमारा मुल्क फला, हमारा मुल्क ऐसा, हमारा मुल्क ऐसा। अबे तुम पहले अपने आप को सुधारो, फिर जाके आगे बढ़ो। कामयाबी का रास्ता वही है जो पहले खुद अमल करे, फिर दूसरों को तरजीह करे कि हाँ भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है। इस चीज को हम लोगों ने किया हुआ है। नमाज हम पढ़ते नहीं है, कुरान की तिलावत हमें आती नहीं है, और हम लगा रहे बड़े बड़े मतलब के तबलीगों में, और बोलते कि फेंकते ऐसे लंबी लंबी है जैसे कि इनसे बड़ा फेंकू ही कोई नहीं है। मैंने बोला बस कर जा, पागल बना रहा है तो मुझे, बेवकूफ, हम बेवकूफ नहीं है, इस बात को याद रखो। बहुत से बेवकूफ मिलते हैं मुझे, रोज ही मिल रहे होते हैं, अजीब कि कभी कोई मिल रहा है कभी कोई मिल रहा है, रोज बेवकूफ जो नहीं होते, अबे फेंकते लंबी लंबी है वो। तो भाई इस चीज को, बेवकूफी को निकालो, इल्म हासिल करो। इल्म बहुत छोटा रही है, बस अपनी तरफ से बस टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया, ये करना वो करना वो करना, मेरे तुम्हारी मुंह से और कुछ निकलेगा तो फिर सुनते रह जाओगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो इस चीज को हम लोगों ने समझना है। सरदार उस्ताद वो होता है जो नमाज सबसे पहले अदा करे, है भाई। वही हाकिम वक्त भी अच्छा बन सकता है, वही मतलब कि अच्छा लीडर बन सकता है, वो अच्छा उस्ताद बन सकता है, वो अच्छा मयार बन सकता है। गाली एक से बढ़कर एक गाली है, मुंह ही मुंह पे, बहुत हर मुंह पे हमें मतलब कि लोग बोलते हैं ना भाई देखो ये फला शख्स गालियां दे रहा है, फला शख्स, इस चीज को सुधारो। झूठ इतना बड़ा कि बोलते हम उस्ताद है, मैंने बोला ऐसा उस्ताद को मैं नहीं मानता। मैंने बोल दिया करो जाके, हाँ मैं आपको भी तो कहता हूँ जो ऐसा करे ना उसको बोलो तुम मेरा कोई उस्ताद उस्ताद नहीं है भाई, निकल पहली फुर्सत से दफा हो जा। सबसे पहले तो ये बोल दिया करो भाई, सीधा बोलो। नमाज पढ़ता है, अल्लाह के सामने सर झुकाता है, ठीक है भाई बहुत अच्छा। अच्छा कुरान की तिलावत करता है, बहुत अच्छा, ये तो गरीब भी कर सकता है भाई, अमीर छोड़ो छोड़ो। अच्छा अगर काबिल सितारत है, बाकी जो दीन की खिदमत करता है, ठीक है बहुत वेरी गुड। फिर वरना और कोई अच्छे हुस्न अखलाक के साथ पेश आता है, वेरी नाइस, कोई मसला नहीं, एब्सोल्युटली राइट। हम मतलब कि आपको अपना शागिर्द मानेंगे भाई, आप जो अपना उस्ताद मानना अपना, तो ठीक है। अगर इनमें से क्वालिटी खराब है, बेकार आदमी हो या वो कचरा हो, तो चाहे तुम जितने बड़े एक्सपीरियंस वाइज हो, चाहे जितने बड़ी दुनिया को, दीन को, अपना दुनिया को चलाने वाले हो, जितने भी मतलब कि तुम क्रिटिकल इश्यूज को खत्म करने वाले हो, नट टाइट करने वाले हो, सब बेकार है, बेकार है, फेंक दो तुम्हें, कचरा हो, बिल्कुल कचरा, टप्पर कचरा नहीं होते वो तो इस चीज को हम लोगों ने खूब समझ लेना है। तो उसको हमने तस्लीम करना है जो अल्लाह रसूल के रास्ते पे चले, समझते हो? उसको हमने बिल्कुल तस्लीम नहीं करना जो अल्लाह रसूल के रास्ते पे बोलो ना चल रहा हो।
बस बहकावे में आ जाते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें करते हैं, शी शू है वो, बस वो माइकल जैक्सन फिश फिश वही चल रहा होता है, तो हो जाता है इनका काम। अरे हमसे जन्नती है। जन्नत तब मिलेगी जब दीन को मतलब के संवारोगे, अल्लाह रसूल को मतलब के लेके चलोगे। तो मैं यही बोल रहा था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम अक़वालात और उनकी जिंदगी को देखे ना उठा के, तो फिर पता लगे कि पाकिस्तान किस तरह आजाद हुआ था। इस बात को याद रखना। और हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो इन सब का मतलब का देखा जाए, लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, तो अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़े ना तो कुछ तो सेंस में आया यार कि हम कर क्या रहे हैं भाई, हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। जब बोल रहे तो उसको अमली हमने जिंदगी को भी लेके चलना होता है। ये मुल्क पाकिस्तान का झंडा जब आ गया तो हमने हिफाजत भी करनी है, इसकी अच्छाइयां भी करनी है, इस पर तरक्कियां भी करनी है, तो जाके हम अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे कौम वाले, अच्छे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने क्यों भेजा अपने हबीब को, ताकि तुम दीन भी फैलाओ और दुनिया को भी संवारो, ताकि माशरा जो है अच्छा दे रहे हैं। समझते हो कि समझते? तो आपके जरिए से माशरा देखो, पहले जो था अपना, जब बेटी अपना पैदा होया करती थी तो जिंदा मतलब के दफन किया कर देते थे। ये बात बहुत मुझे मतलब कि वो लगती है कि चुपती है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे तो जमाना कितना जहालत था, कितना बहुत बड़ा था, और कितना मतलब कि इनका मयार गंदा था। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, तशरीफ लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी तालीमात की वजह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मुश्किलात झेलकर एक सारी बदबख्तियों को, बदखोरियों को और पता से जहालत को खत्म कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात जो थी किस तरह नूरानियत की तरह फैला दी, और आज तक फैली हुई है। पहले के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा नहीं हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पहले, तो किस तरह मतलब कि जमाना जहालियत उरूज में था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। दूसरे नंबर पर जब जरा जरा सी बातों में जंगे होया करती थी, पता नहीं क्या कुछ होया करता था, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो किस तरह मतलब खुशहाली भी आई, बहाली भी आई, और सब अमन भी हो गया, बेटियों को इज्जत मिली, बड़ा मयार मिला, माओ को इज्जत मिली, बेटियों को इज्जत मिली, बहनों को इज्जत मिली। किसकी वजह से? सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनके लक़ब सादिक़ुल अमीन है, जिसका मयार सादिक़ुल अमीन है, वो तो सच्चा और अलमदार है, वो तो सच्चे अलमदार है, वो हक के वफादार है, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। इस पर कोई शक नहीं है। शक करने वाला भी काफिर है, ये बात याद रखो। जो शक करे कि हाँ ऐसा भी है तो वो भी काफिर है। मेरा फतवा ये तो फतवा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे जो शक करता है वो काफिर है। मैं अभी भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आज चैलेंज है, देखते हैं जो भी ऐसा दावा कर रहा है, जो भी मतलब कादियानियत को प्रमोट करता है, मिर्जा गुलाम अहमद दज्जाल कादियानी को, उसको मैं दज्जाली बोलता हूँ, बदबख्त हूँ। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करता है, माज़ अल्लाह नकले कुफर नवाशद, वो सबसे बड़ा मुर्तद और काफिर है। देख कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद मुबारक में अपना दुनिया से चले गए, गोद मुबारक पर सर मुबारक रखा था और उस वक्त दुनिया में चले गए। ये कितनी महबूब है, कितना मयार है, अल्लाह को कितना बड़ा पसंद है। और वो बदबख्त लानती खबीस में इस वजह से कादियानियों को बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब के अपना जानशीन बोलो, मत मानो। वो बदबख्त कहाँ लेटरिन में मरने वाला बदबख्त, कहाँ हमारे अशरफुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला रहो। ऐसा कभी नहीं होने देंगे जब तक के अहले इस्लाम बैठे हुए, अहले दीन बैठे हुए। इंशाअल्लाह बोलो ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होगा। कयामत आ जाएगी, हम चले जाएंगे, मगर ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। और ऐसा इस तरह हम आने नहीं देंगे, किसी भी नबूवत को डाका डालने बोलो नहीं डालने देंगे। क्योंकि जब तक के कुरान की आयत जिंदा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, तो बस हमारा ईमान है कुरान का फतवा, नबी का फतवा, अल्लाह का फतवा, हर सहाबा का फतवा, अबू बकर सिद्दीक का फतवा, उमर फारूक का फतवा, उस्मान गनी का फतवा, अली अल मुर्तज़ा का फतवा, तमाम सहाबा का फतवा, तमाम अहले बैत का फतवा, तमाम ताबईन का फतवा, तमाम ताबईन का फतवा, तमाम अहनाफ, असलाफ, मुहद्दिस, मुफस्सिर, उलमा इकराम जितने भी आ चुके हैं उन सब का फतवा, खुदा की कसम हमारा भी यही फतवा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर है। इनके बाद ना कोई नबी था, ना है, ना आएगा। शायद लास्ट पैगंबर हमारे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और लास्ट पैगंबर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस यहाँ पे बात ही खत्म हो गई, शरीयत क्लोज हो गई, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं ही खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो इसके बाद हदीस में आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है। आखिर बयान खत्म करके जोश दिला के जा रहा हूँ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ انی منزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اے علی تیری نسبت اس جیسی ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ تو یہاں پہ پاس قرآن کا بھی فتویٰ آ گیا، نبی نے بھی دو صحابیوں کو بشارت دے کے بول دیا ختم نبوت کلوز ہو گئی، اب لا نبی بول دیا تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، اگر نبی ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں بن سکتا تھا، مگر نبوت میں مہر لگ چکی تھی، ختم نبوت ثابت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، یہی ہمارا معیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور صحیح محبت اور اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔